हेलो, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th का ओवरव्यू देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रेगोन एंड मेट्रॉन विच मीन्स मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एन एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रिवॉल्विंग लाइन विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स लाइन। इफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन then the angle is negative, and if it is a positive if the rotation is anti-clockwise direction. Usually we follow two types of conventions for the measuring the angle, that is sexagesimal and a circular system. The sexagesimal system, the unit of measurement is degree. If the rotation from the initial to terminal side is 1 upon 360 degree of the revolution, then the angle is said to have a measure of 1 degree. So the classification in this system is, that is 1 degree is equals to 60 seconds and 1 second is equals to 60 minute. In a circular system of measurement, the unit of measurement is radian. Okay, in the circular system, the measurement is radian. So the 1 radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc equal in a length to the radius of the circle. The length s of an arc PQ of a circle of a radius r is given by s is equals to r theta, where theta is an angle subtended by the arc PQ at the center of circle measured in terms of radian. Now what is the relation between the degree and the radian? Okay, this is important. So the circumference of a circle always bears a constant ratio to its diameter. This constant ratio is number denoted by pi, which is taken as 22/7. Okay, so the relationship between the degree and radian measure is 2 right angle is equals to what? 180 degree, as you know, which is equals to pi radian. Now 1 radian is equals to pi upon 180 degree upon pi, that is approximately 57 degree 16 minute approx. And 1 degree is equals to what? Pi upon 180 degree, 180 radian. Okay, which is measured in radian, which is equals to 0.01746 radians approx. Trigonometric functions. So trigonometric functions, trigonometric ratios are defined for acute angles as the ratio of the side of a right angle triangle. The extension of trigonometric ratios to any angle in a terms of radian measures real numbers are called trigonometric function. The sign of trigonometric function for different quadrants are given in this table. So we know the add sugar to coffee. Okay, so here the first quadrant, second and third and fourth quadrant. In a first quadrant all the angles are positive, whereas in second quadrant the sign is positive, and in third and fourth quadrant sign is negative. Cos is negative in second quadrant and third quadrant, but it is positive in fourth quadrant. Tan is negative in second, but it is positive in third quadrant. Similarly, cosec x is again positive in the second quadrant. Sec is, which is inverse of what? Cos, so it is positive in fourth quadrant, and cot, which is inverse of tan, is positive in third quadrant. Now domain and range of trigonometric functions. What are the domain and range of trigonometric functions? As you know, sine, the domain is set of real numbers and range is close interval -1 to 1. Cosine, the domain is set of real numbers and range is -1 to 1. Now in tan, domain is what? Set of all real numbers. Subtract 2n plus 1 pi by 2, where n is, you know, is a set of integers and r is a range of this. Similarly in cot, r minus n pi, where n is belongs to the set of integers and range is r. We have to reduce, हमें r में से सेट ऑफ रियल नंबर्स में से n पाई को हटाना पड़ेगा. सिमिलरली सेक के अंदर जो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, जहाँ n की वैल्यू z है, n जो है आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है, और इसकी जो रेंज हो जाएगी वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में से आपको -1 जो है वो
ओपन ब्रैकेट आपको हटाना पड़ेगा। नाउ कोसेक के अंदर अगर हम बात करें तो डोमेन जो हो जाएगी, जो एन पाई का जो इवन मल्टीपल है उसको आपको हटाना पड़ेगा, और एन की वैल्यू आपको पता है जेड इंटीजर है ही, और रेंज जो है इसमें वो भी आपको सेट ऑफ रियल नंबर्स में से -1, 1 क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट जो है वो हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ साइन कोसाइन और टेंजेंट ऑफ सम एंगल्स जो कि लेस देन 90 डिग्री है। आपको पता है साइन के लिए 0 डिग्री पे एंगल 0 होता है, 15 डिग्री पे ये √6 माइनस √2/4 हो जाता है, 18 डिग्री पे √5 माइनस 1/4, 30 डिग्री पे हाफ होता ही है, आपको पता ही है, 36 डिग्री पे √10 माइनस 2√5/4, ये डायरेक्टली याद कर ले तो हम बेहतर है। 45 डिग्री के लिए 1/√2 होती है वैल्यू, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 पे 1 होती है। सिमिलरली अगर हम कोसाइन की बात करें, कोसाइन एंगल के लिए, कोसाइन एंगल की अगर हम बात करें तो आपकी 0 डिग्री पे 1 होती है वैल्यू, आपको पता है 30 डिग्री पे √3/2 होती है, और 45 डिग्री पे 1/√2 और 60 डिग्री पे 1/2 होती है, 90 पे 0। 15 डिग्री और 18 डिग्री जो कि लेस देन 90 है उस पर भी वैल्यू √6 प्लस √2/4 होगी, और 18 डिग्री पे √10 प्लस 2√5/4 जो कि हम डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। 10 की वैल्यू जो है 0 डिग्री पे 0 होती है, 15 डिग्री पे 2 माइनस √3 याद रहनी चाहिए ये, और 18 डिग्री जो है उस पर √25 माइनस 10 √5/5, 30 डिग्री पे आपको पता ही है 1/√3 होती है, 45 डिग्री पे 1 होती है, 60 डिग्री पे √3 होती है, और 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है, और 36 डिग्री पे √5 माइनस 2√5 होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं फंक्शंस ऑफ अ नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं। तो थीटा अगर कोई भी एंगल है तो साइन ऑफ माइनस थीटा, जो साइन जो है वो एज इट इज़ आ जाता है माइनस ऑफ साइन थीटा, लेकिन कॉस में अगर माइनस थीटा आ जाता है तो कॉस साइन को खा जाता है और कॉस थीटा एज इट इज़ हो जाता है, और सेक भी जो है इसी तरह से साइन को खा जाता है, तो सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा हो जाता है, लेकिन टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा रहेगा, कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा रहेगा, और कोसेक माइनस थीटा जो है माइनस ऑफ कोसेक थीटा रहेगा। नाउ सम फॉर्मूला रिगार्डिंग द कंपाउंड एंगल्स के लिए जो कि हमारे फॉर्मूलेज बहुत यूज होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एन एंगल मेड अप ऑफ सम एंड डिफरेंसेस ऑफ 2 और मोर एंगल्स इज कॉल्ड अ कंपाउंड एंगल्स, ओके, विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एंगल्स। जो बेसिक रिजल्ट्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के वो ये हैं, साइन ऑफ a प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ a माइनस बी दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए साइन बी। ठीक है, यहाँ पर साइन रहता है, साइन कॉस आता है, यहाँ पर भी साइन कॉस आता है, और यहाँ कॉस साइन आ जाता है। ठीक है, कॉस ऑफ a प्लस बी जो है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ a माइनस बी दैट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी का अगर हम देखेंगे तो टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस बी में टेन ए माइनस टेन बी आ जाता है केवल, और 1 प्लस टेन ए टेन बी। कॉट कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता है कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। साइन 2a का होता है 2 साइन ए कॉस ए या फिर 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कॉस 2a का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू या तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन 2a का फॉर्मूला हो जाएगा 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। साइन 3 का फॉर्मूला हो जाएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। कॉस 3a का हो जाएगा 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। टेन 3a का फॉर्मूला हो जाएगा 3 टेन ए माइनस 10 क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। कॉस ए प्लस कॉस बी कॉस ए माइनस कॉस बी, साइन ए प्लस साइन बी और साइन ए माइनस साइन बी। इन चारों के फॉर्मूले देखते हैं हम। कॉस ए प्लस कॉस बी का जो हो जाता है 2 ऑफ कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। कॉस ए माइनस कॉस बी का हो जाएगा 2 साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए बी माइनस ए अपॉन 2। सिमिलरली साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला हो जाएगा, ये सारे प्लस के फॉर्मूलेज हैं, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 और साइन ए माइनस
साइन बी का हो जाएगा 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। अब हम प्रोडक्ट के फॉर्मूले देख लें, ये सारे चारों प्रोडक्ट के फॉर्मूले हैं। 2 साइन ए कॉस बी का साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 cos ए साइन बी का हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 cos ए कॉस बी का कॉस ए प्लस बी कॉस प्लस कॉस ए माइनस बी, और 2 साइन ए साइन बी का हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। साइन ए बाय 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2। अगर a बाई 2 लाई कर रहा है क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकेंड में तो a बाई 2 पॉजिटिव होगा। अगर ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली साइन उस पर नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव होगा। कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए प्लस बी में भी प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी वही है, अगर a बाई 2 पॉजिटिव कब होगा, जहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है जिन जिन क्वाड्रेंट्स में, और नेगेटिव कब होगा, जहाँ पर सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो a बाई 2 नेगेटिव हो जाएगा। tan a अपॉन 2 का फॉर्मूला हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो इफ अगर a अपॉन 2 पॉजिटिव कब होगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan आपका पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो माइनस a अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में। इक्वेशन इन्वॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को और वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करती है। इक्वेशंस आर कॉल्ड आइडेंटिटीज इफ दे आर सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स। ठीक है, फॉर अगर वो सारे अननोन एंगल्स के लिए सेटिस्फाई कर रही है तो आइडेंटिटीज कहलाएगी। फॉर विच द फंक्शंस आर डिफाइंड, इनके लिए फंक्शन को डिफाइन कर रखा है। सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच थीटा इज लेस देन इक्वल्स थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई, that is called principal solution, and expression involving integer n which give all the solution of trigonometric equation is called general solution. general solution कुछ trigonometric equations के हम देख लेते हैं। if sin theta is equals to sin alpha for some angle alpha, then हम थीटा की वैल्यू रख सकते हैं n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा फॉर n वेयर n इज एन इंटीजर गिवन जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो जनरल सॉल्यूशन हम उसका इस तरह से लिखेंगे। अगर कॉस थीटा को कॉस अल्फा लिखते हैं एंगल अल्फा पे, तो जनरल सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा। अगर टेन थीटा टेन अल्फा लिखते हैं और कॉट थीटा को कॉट अल्फा लिख रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू जो होगी वो n पाई प्लस अल्फा होगी, और n इंटीजर है ही वहाँ पर। जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग एनी ऑफ द इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाई कर रही है जो इक्वेशन को साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा को, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा को, साइमल्टेनियसली इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस पाई इज वेयर n is integer. To find the solution of an equation of the form a cos theta plus b sin theta is equals to c, अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है, इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दे रखी है आपको a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल्स टू c, तो v हम पुट करेंगे यहाँ पर a को r cos अल्फा और b को पुट करते हैं r sin अल्फा, तो r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आप इसको पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी, और टेन अल्फा की वैल्यू जो है b अपॉन ए हो जाएगी। दस वी फाइंड द a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल्स टू c चेंज्ड इनटू द फॉर्म r cos थीटा cos अल्फा प्लस sin थीटा sin अल्फा इज इक्वल्स टू c। और आप इससे भी कह सकते हो इसको r cos थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू c एंड हेंस cos थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू c बाय r। दिस गिव्स द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है एक्सप्रेशन की a cos थीटा प्लस b sin थीटा r अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, वेयर a and b are constants.